everybody, how are you all? I hope you're doing all well back at your home. Most of you would have started your normal daily routine job even in this period of Corona. Very sad to say, you know what, that the Corona is really taking up the toll now. In the cities, small cities like Kanpur, you could see in Lucknow, Agra, it is really having a heavy toll there. More than 400 patients being reported officially on an average day every day. What to do? We do not have any vaccine as yet, but I do request all of you to be wearing a mask, because that is the only vaccine at the moment in the world, not just in India. Russia may have had some claims that yes, it has really made some vaccine there of Corona, but it doesn't seem to be working on the ground, nor has it been spread all across the globe after the claim was declared on the Russian president. Now we are back with our business, that is lecture number 4, spoken English. And yes, what I have given you so far is that, I did give you, didn't I, on the day one, what fluency means, what are the stumbling blocks that you have to conquer in order to learn spoken English, that I gave you on the day 1. Day 2, it was day 2 and day 3. I think we have covered up PIR, personal introductory round, self-introduction, how to introduce yourself to the people when you go and meet across them there officially or casually. Even however, I did give you the lectures based on how to give your introduction officially, especially in interviews and all that, with whys and hows, with all logics and rations behind it. Today on the day lecture 4, I did promise you, didn't I, that we would be discussing about how to explore vocabulary there of spoken English in the competitive classes. If you have joined both the batches, competitive and spoken English, you would be getting the difference between the competitive vocabulary and the spoken English vocabulary, right? Because in a spoken English vocabulary, we discuss about the words that are of low gravity, that are the words that are used much more there in spoken English than in the print media, that are generally asked there in competitive classes. Here we do not talk about the mumbo jumbo, the convoluted, complicated words. What we discuss about that, the easy to understand words in the spoken English. And now what you have to do is to ensure and make way how to have a good approach in vocabulary. In spoken English, how vocabulary is built up, I'll be telling you some of the ways today as to how you can develop your confidence. In spoken English, I have a formula, how I have made myself believe that yes, I'm able to talk to anybody in the world, and similarly I can communicate whatever I have in my heart, and I can transmit it 100% to the person, those who understand in English, right? Here we go, and let's find out one of the ways. See, you should be making a target today, and the target should be this: anything that is visible. Anything that is visible and audible, you should know the English of. That is my goal, and that has always been my goal, mind you. That should be your goal as well. Anything which is visible that you can sight, and anything that is audible that you can hear, you should be able to know the English word of that as well. If you do not know the English word of these things and all that, you know what happens, your confidence shatters at times when you meet across the people, those who are much better in English than you. So what you have to make yourself believe is that you have to have a very good approach into building vocabulary of spoken English. Here आपको कोई भी चीज अभी ये आपको दिमाग में, जहन में, आपको दिलो दिमाग में बैठाना है. यू हैव टू डिन इट इन योर हेड एंड हार्ट कि भैया कोई भी चीज जो मुझे आंखों से, नग्न आंखों से विजिबल है, जो भी चीज मुझे यहां से लेके एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में दिख रही है, उसकी पहले तो आपकी चेष्टा, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उसकी मुझे इंग्लिश आनी चाहिए. अगर नहीं आती, देयर आर मेनी सोर्सेज दैट यू कैन एक्सप्लोर इनटू. बहुत सारे सोर्सेज है, डिक्शनरीज आर देयर, गूगल इज देयर, टीचर्स आर देयर, सब लोग हैं आपके लिए तो बताने के लिए. आपको उस शब्द की इंग्लिश आनी चाहिए, जो चीज दिख जाए उसकी इंग्लिश आ जाए. सपोज आप कहीं गुजर रहे हो और या आपको गुजर रहे हो, फटा पुराना कपड़ा सा पड़ा हुआ, नया कपड़ा नहीं है, फटा पुराना. अब मेरी वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट हो चुकी, बी सीरियस नाउ विद पेन एंड पेपर. फटा पुराना कपड़ा दिख गया, मम्मी से कहना आपको है, घर के अंदर ही आप हो, मम्मी ये फटा पुराना कपड़ा किसका है? ये फटा पुराना कपड़ा जो डस्टिंग वगैरह काम आता, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए. आपके घर में मम्मा या मेड कोई भी आता होगा, सिस्टर वगैरह पोछा लगाती होंगी, तो उस पोछे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू शुड नो द इंग्लिश ऑफ दैट. ये नहीं कि बड़ी
ऑफिशियल इंग्लिश, हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग की कॉन्फिडेंस यही डेवलप होगा। आप समझो कि यू आर इन सच ए कंट्री वेयर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और आपको उनसे इंग्लिश में ही बात करके 24 घंटे गुजारने, तो आप क्या करोगे? यू टेल मी नाउ बैक, राइट? तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपके अंदर वो आदत जनरेट होने लगेगी। जैसे फटे पुराने कपड़े को फॉर एग्जाम्पल, अभी बस एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? RAG, रैग। अगर आपको किसी से कहना है भैया कोई कपड़ा है जरा गद्दी वगैरह मुझे पूछनी है, कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ रैग, आई जस्ट वांट टू वाइप इट ऑफ द वाटर ओवर माय सीट। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप खुद ब खुद सीख सकते हैं। यू डोंट नीड एनी टीचर टू टीच यू दोस वर्ड्स एंड ऑल दैट। आई मीन यू शुड हैव द हंगर एंड क्यूरियोसिटी टू बी नोइंग ऑल दोस वर्ड्स इन इंग्लिश योरसेल्फ ओनली, देन ओनली द थिंग्स विल बिगिन टू कम इन योर फेवर, माइंड यू, राइट? देन सो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको खुद ब खुद इंग्लिश आने की चेष्टा करिए कि क्या क्या चीज सीखे। जैसे सपोज आपके घर में सामने पर्दा पड़ा होगा, पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ा इजी वर्ड है, सभी लोग जानते हैं भाई। पर्दे को क्या बोलेंगे? कर्टेन बोलते हैं, CURTAIN, ठीक है? आपने लिख दिया कर्टेन। अब इसी से आ जाता है आई एम सॉरी कि पर्दा हटाओ। मान के चलो सनलाइट लानी है आपको, आपने कहना पर्दा हटाओ, तो अब आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपने आप क्यूरियोसिटी जगाइए, आपके पास तो अथाह सागर है सीखने के लिए। पर्दा हटाइए, पर्दा हटाने को क्या बोलोगे? रिमूव। अगर आप बोलते हैं रिमूव द कर्टेन, इसका मतलब है पर्दे को आपने उखाड़ के फेंक दिया, या पर्दे को आपने गिरा दिया, या पर्दे को आपने निकाल लिया है, पर्दा किनारे लटका हुआ हैंगिंग नहीं है। अब पर्दे को अगर आपको कहना है कि भाई पर्दा खिसका दो, तो बोलोगे विथड्रॉ द कर्टेन। क्या बोलेंगे? विथड्रॉ द कर्टेन, ऑलराइट? That is called withdraw the curtain. Okay? आप नहीं कहोगे remove the curtain would be a wrong collocation here. Collocation तो अब आपको समझ में आ गया। अगर आपने हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पूरा लेक्चर मैंने दिया है कि collocation होता क्या है, collocation की डिक्शनरी क्या, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप collocation का लेक्चर हमारी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जाके देख सकते हैं। इफ यू आर द पेड मेंबर ऑफ दैट, तो आप जाके उसको देखिए और आपको बहुत कुछ इसका समझ में आएगा कि इसको क्या बोलते हैं। अब जैसे मान के चलिए इस कमरे में मैं देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज जो आंखों से दिखे उसकी इंग्लिश आनी चाहिए। अब कमरे में देख रहा हूं, देखिए आप तो नहीं देख पाओगे, कैमरा मारा वहां नहीं जाएगा। अभी मुझे थोड़ा सा जाला कहीं पे दिख रहा है। अब जाला आपके घर में भी होता, हमारे घर में भी होता, हर जगह अपने आप ये फॉर्म हो जाता। क्यों? इसकी सफाई करते, इसको क्लियर करते हम लोग। तो जाले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू शुड नो। ओके, बताइए जाले को क्या बोलेंगे? हाँ, अपने घर में भी देख लो, आपके यहाँ भी पक्का लगा होगा। गुरु लगाया जाला? नहीं लगा होगा। तो जाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, जाले को बोलते हैं कॉबवेब। क्या बोलते हैं? कॉबवेब। अब जाला हटाना है, क्लियर द कॉबवेब। रिमूव वहां पे भी नहीं अच्छा शब्द है कि रिमूव द कॉबवेब, क्लियर द कॉबवेब। तो अब जाले की इंग्लिश मिल गई। ऐसे ही देखिए, मैं बगल में देख रहा हूं, हमारे यहाँ दरवाजा लगा है, आपके यहाँ भी जरूर डोर तो लगा ही होगा। अब डोर में सब कब्जे लगे। अब कब्जे की इंग्लिश क्या होती है? हमने कहा ना कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना। हर चीज जो मुझे दिखती है मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। अब बताइए क्या होगी? कब्जे की नहीं मालूम? देखिए, हिंजेस। कब्जे की होती है हिंजेस। तो हिंजेस का मतलब होता है कब्जा जो डोर में लगते हैं, जिससे डोर आपका मूव कर पाता है। ऐसे ही देखिए, मैं सामने एसी देख रहा हूं, आपके यहाँ भी एसी होगा। एसी में जो पट्टियां लगी होती हैं जिससे हवा आप ऊपर नीचे वेंटिलेट करते हो ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपकी कार में भी होगा, उसको वेंट्स कहते हैं, एयर वेंट्स। ठीक, अब बात करिए, देखिए कुछ भी, एनीथिंग दैट यू कैन सी। पत्थर लगा है, पत्थर घिस गया है। अब घिसने को क्या बोलते हैं? कि पत्थर पापा घिस गया है। वॉर्न आउट मार्बल, राइट? वॉर्न आउट। अभी जो मुझे दिख रहा है मैं सब आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मेरे बगल में इधर एक एलईडी लाइट लगी हुई है। अब एलईडी का मतलब क्या होता है? एलईडी आपके यहाँ माउंटेड टेलीविजन स्क्रीन भी लगी हो सकती है। क्यों? एलईडी। अब कुछ की किसी भी चीज की इंग्लिश आपको आना चाहिए। एलईडी, मैं आपके अंदर हंगर जगाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइट एमिटिंग डायोड, राइट? लाइट एमिटिंग डायोड, दिस इज कॉल्ड एलईडी। हर चीज की इंग्लिश बेटा आपको आनी चाहिए। देखिए, बाल की मांग को क्या कहते हैं? कहीं से भी चालू कर दो बेटा, सीखना अगर है तो कुछ भी चालू कर दो। बाल की मांग को क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, ये तो आपको मालूम है, मांग भरो सजना। देयर वाज अ मूवी एज वेल आई सपोज। मांग नहीं, एक मांग होती है जो डिमांड होती है, बट दिस मांग इन इंग्लिश इज कॉल्ड पार्टिंग ऑफ हेयर।
पार्टिंग ऑफ हेयर, बीच की मांग है तो मिडल पार्टिंग, साइड की मांग है तो साइड पार्टिंग, पार्टिंग दिस इज कॉल्ड, राइट। इस तरीके से आपके अंदर एक जज्बा जगना चाहिए कि मुझे कुछ भी दिख रहा है उसकी इंग्लिश आ जाए भाई, कुछ भी दिख रहा है उसकी इंग्लिश आ जाए। कुछ भूख जाग रही है? Am I succeeding a bit into arousing your hunger for vocabulary? नहीं। अब देखिए कुछ भी दिख जाए, मैं और क्या मैं देख लूं, चेयर जो घूमती है, मेरे बगल में रखा है चेयर जो घूमती है ऐसे ऐसे करके, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग चेयर कहते हैं। चेयर जिसमें हम पुश बैक कर लेते हैं ऐसे करके, मूवी थिएटर्स में जाते देखने, उसको क्या कहते हैं? और रिक्लाइनिंग चेयर कहते हैं। क्यों? रिक्लाइन माने पीछे आना, रिक्लाइनिंग चेयर बोलते हैं, रिवॉल्विंग चेयर बोलते हैं घूमने वाली चेयर को, जिसमें आप अपने स्कूल कॉलेज में जाते हो सकता है एक पैड लगा होता है जिसपे आप पैड पे लिखते हो, पैड चेयर कहलाता है। क्यों? इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कुछ भी एनीथिंग दैट यू कैन सी उसकी इंग्लिश आए। तो आज से एक आदत बना लो यार आप लोग की भाई 10 शब्द आपको वो देखने, पहले अपने घर के अंदर देखो, किचन में देखो, कहीं पे भी देखो, उन शब्दों को तलाशो जिसमें कहीं पे भी इंग्लिश छुपी हो सकती है आपके लिए सीखने के लिए कि हाँ यार सर ने तो कहा सब चीज की इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप सब चीज के लिए जाओ ना, व्हाई डोंट यू गो आफ्टर दैट। अगर आपको कोई वर्ड ऐसा है जो डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है या आपको गूगल सर्च करने में समझ में नहीं आ रहा ये सही है कि वो सही है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको तुरंत ही जैसे ही खाली होता हूं मैं आपको उस करेक्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड लिख के व्हाट्सएप पे दे दूंगा, राइट। चलिए दिस इज वन वे, ये तो था एक तरीका जिसमें मैंने आपको इंस्पायर कर रहा हूं कि कैसे वोकैबुलरी सीखी जाए। कुछ भी आपकी नोटबुक अभी खुली है, उसके पन्ने टेढ़े मेढ़े हैं, उन पन्नों को क्या कहते हैं? डॉग ईयर्ड पेजेस। कहीं से भी आपको सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड में मुझे जो जो दिख रहा सबकी इंग्लिश आ जाए भगवान, बस ठीक है ना। जब तक ना आए तब तक चैन की सांस नहीं लेना। अब चैन की सांस निकल आए तो साहब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ साई ऑफ रिलीफ, या तो बोलो अ साई ऑफ रिलीफ या साई ऑफ रेस्पाइट। ओके, ये देखिए कुछ भी आपके मुंह से निकले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और दूसरा देखिए मैंने क्या था, जो ऑडिबल हो, मान के चलिए कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है उसकी इंग्लिश नहीं आती है तो तुरंत ढूंढिए। जैसे किसी ने कहा यार तुम पक्के चटु इंसान हो, अब आपने सुन लिया यार फले आदमी बात कर ले, उसने कहा था चटु इंसान हो, सर ने तो कहा था यार सबकी इंग्लिश आनी चाहिए, चटु इंसान की क्या होती है? अब चाटने को तो लिख कहते हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन लिकिंग पर्सन तो नहीं बोलोगे, चटु को क्या बोलोगे? वैक्सिंग पर्सन। यू आर सच अ वैक्सिंग पर्सन, तुम बहुत बड़े चटु इंसान हो। तो इस तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अब आगे ना तो डेली आप कम से कम कितने शब्द ऐसे सीखेंगे अपने आप, बताइए कितने? इस 3 महीने की जर्नी में कितने शब्द आप सीखना चाहते हो अपने आप बताओ? कम से कम पर डे 10 वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम 10 वर्ड्स अ डे। उसमें संडे मंडे मत छोड़िएगा, हर रोज पढ़ाई करिए। देखिए मेरा हाथ आया, अब हाथ में इसको क्या कहते हैं? पाम। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे भाई साहब सामने वाले को? अपर पाम। क्या यार तुम लोग भी, बहुत सारी चीजें तो आती हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती हम बोलें कैसे? अपर पाम, राइट। ऐसे ही इसमें देखिए पोरे हैं उंगलियों में, फैलेंजेस बोलेंगे, इसकी सबकी डिटेल में पढ़ाई होगी, लेकिन अभी तो हम आपके सिर्फ हंगर को जगा रहे हैं कि वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश के कैसे सीखी जाए, राइट। अब दाढ़ी के बाल हैं, दाढ़ी मुच्छे के बाल हैं, क्या बोलेंगे? सर के बाल हैं, इनको क्या बोलेंगे? सबकी अलग अलग इंग्लिश होगा, ऐसा नहीं कि सब जगह हेयर लग जाएगा, राइट। ये आपके अंदर एक जिज्ञासा जागनी चाहिए, एक स्ट्राइव जागनी चाहिए, एक हंगर जागनी चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है फिर आप डेफिनेटली वो चीज के लिए निकल पड़ेंगे जिसके लिए आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया। दूसरा तरीके पर चलते हैं। देखिए दूसरा तरीका वोकैबुलरी का जो मैं बिलीव करता हूं, मैं एक सॉलिड मेथड पे बिलीव करता हूं जिससे हमारी अप्रोच ऐसी हो कि एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिले, 3 महीने 6 महीने साल भर जब भी मिलेगी, लेकिन फिर हम फ्लुएंट हो ही जाएं। ये नहीं कि यार आ तो गया, फला स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया था लेकिन मजा नहीं आया यार, अभी भी कहीं ना कहीं हम वैसे ही पढ़े हो, वो सब फिर ना हो। नथिंग शुड बी लाइक दैट, यू नो। ओके, मेरी जो अप्रोच है यहां पे वो कुछ ऐसी है, गो फॉर द किल। हमारा तो भैया फार्मूला है अलग सा, गो फॉर द किल।
वोकैबुलरी के मामले में खासतौर से जब स्पोकन इंग्लिश के वोकैबुलरी की हम बात करते हैं, देन वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड गो फॉर द किल। गो फॉर द किल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट को उठाया है, अगर आपने कोई एक मुद्दा उठाया है इंग्लिश सीखने के लिए, वोकैबुलरी सीखने के लिए, तो उसको तब तक ना छोड़िए जब तक उसको उस मुद्दे को किल ना कर दें। दिस इज कॉल्ड गो फॉर द किल। वेट, वाटर। ये देखिए, अब गो फॉर द किल, जैसे ये जो टैक्टिक्स है ये मैंने सीखी थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से। ऑस्ट्रेलिया जब भी मैच खेलता है या था, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ऑस्ट्रेलियंस जब तक जीत ना जाए तब तक खुशी का इजहार नहीं करते बहुत ज्यादा। अब जैसे इंडियंस को हम पहले देखते थे कि अगर उनको लग रहा है कि अब तो हम जीत रहे हैं, 2 ही विकेट लेने हैं, उनको 100 रन बनाने, कहां हमारी ऑपोजिट टीम बना पाएगी, तो ये सब पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराने लगते थे। और श्रीकांत तुम आ जाओ, और तुम भी यू ऑल्सो कम एंड रोल योर आर्म ओवर। तो उससे क्या होता था, कभी कभी वी वुड लूज द मैच एज वेल, हम लोग मैच हार भी जाते थे। ऑस्ट्रेलियंस में नहीं, ऑस्ट्रेलियंस कहता था कि चाहे टेल एंडर क्यों ना हो, तब भी वो अपने मेन स्ट्राइक बॉलर से बॉल कराते थे, जबकि उनको ये ऑलमोस्ट मालूम होता था कि हम मैच जीत गए। लेकिन ऑलमोस्ट तो होगा नहीं, क्रिकेट इज द नेम एंड द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। कभी भी अनिश्चितताओं का ये तो खेल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, जीता हुआ मैच हार सकते हो, हारा हुआ मैच जीत भी सकते हो। तो they would not celebrate until they would take the last wicket, so or until they would score the last run। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जब तक आपको पूरे उस सब्जेक्ट की निचोड़ ना निकाले, उसको आप एकदम सैचुरेट ना कर दे, तब तक उस विषय को ना छोड़े। ये भाई मेरा अपना मानना, मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा के अपनी अपनी जगह प्लेस कर दिया। सब लोग मजे से रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्हाटएवर, अपनी अपनी फील्ड में वो लोग जमे जमाए हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गो फॉर द किल के सब्जेक्ट्स बताऊंगा, फिर आप भी खुद भी सब्जेक्ट्स बनाइए ना। यू ऑल्सो डेवलप एंड मेक योर ओन सब्जेक्ट्स, व्हाई डू यू रेस्ट ऑन मी ऑल द टाइम, यू नो। आज मैं आपको 10, 12, 15 तरीके बता दूंगा गो फॉर किल के, वो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिसके आधार पर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए, जैसे पहला सब्जेक्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इस चैप्टर में हम लोग, बहुत लंबा चैप्टर अपना ये है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है, आप कहोगे ये तो मुझे मालूम है कि ये नोज है, ये ईयर है, ये आईज है, ये सब नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, कुछ और पढ़ेंगे जो आपने नहीं आता होगा। मेरी गारंटी है, अगर आपने हमें पहले नहीं ज्वाइन किया है तो शायद नहीं आता होगा। दैट्स व्हाट आई टेक द गारंटी ऑफ। दूसरा, ई स्क्वायर एंड टी, ये सारे चैप्टर्स हैं जो इस इंस्टीट्यूट के हैं, स्पीक फार के, ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट, ये एक चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जब तक आपके शरीर के हम हर एक उस पार्ट की जिसको आपको अभिलाषा है जानने की इंग्लिश नहीं सिखा देंगे, तब तक वो चैप्टर हम खत्म नहीं करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती हो, ये आपको गारंटी अपने को दिलानी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ई स्क्वायर एंड टी, ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट। अब आईज से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, जैसे ये ढेड़ा है, ये काना है, ये आंख मार रहा है, आंख छपक रहा है, आंख में कीचड़ आ गया है ना, आंखें तर्रा रहा है, आंखें से घूर रहा है, नैन में टक्का कर रहा है, सो रहा है, घोड़े की नींद सो रहा है, नींद में चल रहा है, नींद में बातें कर रहा है, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें आपको एक साथ में बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। बिलीव यू मी, बहुत मजा आता है ऐसे जब आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, आपको लगता है वाओ, क्लास शुड मूव ऑन, क्लास चलती रहनी चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। ऐसे ही नोज में जब आएंगे तो सारी चीजें नोज से डिस्कस कर लेंगे। इसकी नाक बह रही है ना, कहना हिज नोज इज फ्लोइंग लाइक रिवर गंगा, वो भी बेटा गलत हो जाएगा। नहीं, अब बहने को क्या कहेंगे ये भी आपको मालूम चाहिए। ये नकचड़ा बच्चा है, इसको क्या कहेंगे, नाक में 2 छेद हैं, इसको क्या कहेंगे, नक छेदन को क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही ईयर्स में आ जाएंगे, इसका कान का पर्दा फट गया है। अब पर्दा फटने की क्या होगी, ये पर्दा तो कर्टेन होता है जो आपके घर पे टंगा होगा विंडोज के ऊपर, और इस पर्दे को क्या बोलेंगे, कर्टेन, ईयर कर्टेन, गलत हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी शब्द हैं। इसी तरह का थ्रोट, गला, गले से संबंधित
जैसे देखिए मुझे खांसी आया, अब खांसी आने क्या क्या, खांसी के साथ कभी कभी बलगम आ जाता है, उस बलगम को क्या कहेंगे, कफ। कफ नहीं कहते, ध्यान रखना, हम क्लास जब लेंगे तो आपको बताएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन कानपुर सिटी एंड इन स्मॉल सिटीज एज वेल आई हैव सीन देम यूजिंग कफ। डॉक्टर साहब कफ बहुत निकला, वो भी कहता कफ बहुत निकला, अच्छा। तो अब ये आ गया, इसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश होगा, इसके बाद हम लोग और चैप्टर पाएंगे, फिर आ जाएंगे आउटफिट्स पे, अटायर्स पे, अपनी क्लोथिंग्स पे आ जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कपड़ों के ऊपर। कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? कपड़े का मतलब कोई हम लोग गारमेंट शॉप नहीं खोलने जा रहे हैं यहाँ पे। कपड़े का मतलब है जैसे शर्ट पहनी है, ठीक है ना, अब शर्ट बड़ी गर्मा रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ हॉटनेस, या क्या बोलोगे इंग्लिश में, राइट? शर्ट बहुत चुस्त दुरुस्त है, इतनी टाइट है पैंट की उसमें चींटी घुस गए, दम घुट के मर गए, निकल नहीं पाई, ना ऊपर ना नीचे जा पाई। अब सब इसे क्या कहेंगे? कपड़ों में बहुत कुछ होता है, ढीले ढाले कपड़े होते हैं, बड़े चुस्त कपड़े होते हैं, स्विमिंग के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, सब में बहुत सारे वर्ड्स होंगे सीखने के लिए। सीलन खुल गई है बनियाइन की, अब बनियाइन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज के लिए अलग शब्द है इसके लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे शब्द हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। लेडीज साड़ी पहनती हैं, सामने ऐसे ऐसे करके क्या डालती हैं? प्लेट्स। गलत बोल गए भाई साहब, प्लेट्स नहीं होगा, क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। आउटफिट्स के बाद आते हैं अब यूपी बिहार में हमेशा इसका मुद्दा बनाता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मतलब कानून और व्यवस्था। इसमें हम लोग बात करेंगे कानून व्यवस्था की। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कह रहे ना कि कानून बिल्कुल जो है ताक पे रख दिया जाता, ताक पे रखने को कानून को क्या बोलेंगे? ठीक है, कानून का उल्लंघन हुआ तो क्या बोलेंगे? और गुंडागर्दी को क्या बोलेंगे? कानून में असमंजस की स्थिति को क्या बोलेंगे? कानून के रखवालों को क्या बोलेंगे? और रक्षक ही बना भक्षक, इसको कैसे बोलेंगे? कि मान के चलिए कानून के रखवाले हमारे पुलिस वाले भाई हैं, और अगर इन्होंने किसी का शोषण कर दिया, इन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो बोलते ना रक्षक बना भक्षक, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बीच में कुछ पूछा तो हो गया, तो मजा कम आएगा। इसके बाद जुडिशरी पे चलते हैं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। अब हम चलेंगे इसके साथ अदालत के अंदर। अब जब भी कभी किसी को पकड़ा जाता तो अदालत में पेश किया जाता, तो पेश करने को क्या कहते हैं? शेर सिंह राणा ने यही अपना फर्जी वारंट बनवा लिया था, प्रोडक्शन वारंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और वो भाग गया था तिहाड़ जेल से, वन ऑफ द सेफेस्ट जेल्स इन इंडिया। तो जुडिशरी की बात करेंगे, जज साहब की बात करेंगे, जज और जस्टिस में क्या अंतर होता है इसकी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, जज के सामने पेशकार बैठे होते हैं, पेशकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो फाइल पेश करते हैं, क्यों? तो इस तरीके के तमाम शब्द होंगे जिसकी इंग्लिश आपको आनी ही आनी चाहिए। देन कम्स लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आउटफिट्स हो गया, अटायर्स, क्लोथिंग, जुडिशरी। इसके बाद चलते हैं हम लोग व्हीकल्स पे। अब हम लोग चलेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। वो चाहे साइकिल से लेकर के, यानी बाइसिकल से लेकर के हवाई जहाज की बात क्यों ना हो, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीकल्स के अंदर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, राइट? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी साधन है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल खत्म होने क्या बोलेंगे? एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्यूब के जरिए पेट्रोल डालते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपकी गाड़ी की किसी ने हवा निकाल दी, जिसको आप कहते हैं छुच्छी निकाल दी है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप किसी की दुकान पे जाते हो, कहते हो भैया हवा डाल दो, तो हवा डाल दो क्या बोलोगे? फिल द एयर इनटू माय टायर, या ट्यूब, ये भी गलत है, उसको क्या बोलोगे? बहुत सारे शब्द हैं, पंक्चर बनाना है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भस्ट हो गया, बोलते ना भस्ट, ये भस्ट क्या? भस्ट तो कुछ होता ही नहीं, क्या होता है? बर्स्ट होता है। इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे बात करेंगे? एक ड्राइवर होता है जो पर्सनल आप अपनी गाड़ी के लिए रखते हो, किसी और का काम नहीं करता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जी ने रथ चलाया था अर्जुन का, तो सारथी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? किसी भी प्रकार का प्लेन में आगे कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट में कौन बैठता है ना, उसको बोलेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग से संबंधित जो भी प्लेन्स के शब्द होते हैं उसको बोलेंगे। अब ब्लैक बॉक्स आपने सुना होगा, प्लेन के अंदर आफ्टर द एक्सीडेंट उसको ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी, एनीथिंग, जो भी यातायात के साधन है, हर एक चीज आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। और फिर देखिएगा आप साहब, दुनिया में कोई भी न्यूज चैनल सुन लीजिए, आप कहोगे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप दुनिया में किसी इंसान से बात करने में सक्षम होंगे, आप कहोगे यार बोलो ना, क्या बोलना, मुझे तो इंग्लिश आती, कोई भी शब्द उठा लो, यहां से वहां तक, ब्रह्मांड तक, सर ने बताया इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे अब आ चुकी है। ये कॉन्फिडेंस लाना है।
फिर देखिए आएंगे हम लोग मनी पर, पैसे से संबंधित शब्दों के डिस्कस करेंगे। मनी के बहुत फॉर्म्स होते हैं। अब जैसे चिल्लर को क्या कहते हैं आप लोगों, चेंज, ठीक है। इसी तरीके से करारे नोट को क्या कहते हो, कटे फटे नोट को क्या कहते हो, है ना। अब इसी तरीके से नोट से संबंधित कई मनी के फॉर्म होते हैं। कमीशन का क्या मतलब होता है, ब्रोकरेज क्या होती है, स्टाइपेंड क्या होता है, सैलरी क्या होती है, वेजेस क्या होते हैं, रेम्यूनरेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मनी, पैसे का फिर गबन होता है। गबन का मतलब समझते ना, धोखाधड़ी। तो पैसे का जब गबन किया जाता है तो उसको गबन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हर एक चीज भाई साहब जो आपको आए कि पैसे से संबंधित, सर ने कहा सब कुछ आना चाहिए, तो फिर आना चाहिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आप ये मेथड मेरा अपना लेंगे, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में ऐसा मेथड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे मेथड को अपना लिया तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है। नंबर 8 पे आते हैं और देखते हैं क्या टॉपिक हो सकते हैं भाई हमारे गो फॉर द किल में। जैसे सॉरी, एक दिन आ जाओ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर, खेलकूद से संबंधित सारे शब्द हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाइए, खेलकूद के बाद बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिहार में राजनीति गर्म है, इस समय चुनाव होने वाले हैं, तो पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन की बात करेंगे। राजनीति, अब राजनीति जैसे हमने पूछा सभासद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको पार्षद भी हिंदी में कहते हैं। अब सभासद की बहुत सारे बच्चों को हो सकता है आपको ही ना मालूम है सभासद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मालूम है, बताओ। ये गलत बेटा, देख लेना। हाँ तुम्हारा सही है। तो सभासद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और इसी तरीके से विधायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आप कहोगे साहब एमएलए कहते हैं, तो एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य के एमएलए हो गई। लेकिन हमने तो वन वर्ड पूछा ना, एक शब्द में पूछा विधायक, ऐसे इंग्लिश में बताओ। ऐसे एक शब्द में हमने पूछा सांसद, उसके इंग्लिश में बताओ। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आनी चाहिए। फिर आइए, फिर आ जाइए साहब आप मेडिकल साइंस में आ जाइए, चिकित्सा विज्ञान में आ जाइए, इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। डिजीज आ जाएंगी, डॉक्टर्स आ जाएंगे। हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, व्हाट, ओके ये आर्थोपेडिशियन, बिल्कुल सही आपने कहा। तो भैया हड्डी के डॉक्टर को तो आर्थोपेडिशियन कहते हैं। तो बताइए जो कॉस्मेटिक सर्जरी करता है ना हम लोगों की, उसको क्या कहते हैं। एक्सरसाइज कराता है उसको क्या कहते हैं। किडनी के डॉक्टर को क्या कहोगे, किडनी स्पेशलिस्ट। लंग्स के डॉक्टर को क्या कहोगे, लंग्स स्पेशलिस्ट। तो सब में स्पेशलिस्ट लगा दो। स्किन स्पेशलिस्ट क्या कहने की जरूरत है, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ राइट। तो बालों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। महिला रोगों की जो जांच करते हैं, महिलाओं के जो चिकित्सक होते हैं, स्त्री रोग चिकित्सक जिनको कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहुत सारी जो हम लोग की टेस्टिंग करते हैं, खून की जांच करते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो हम लोग की एक्सरे या स्कैनिंग से संबंधित काम करते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। बहुत सारे एरियाज है जहां पे आपको एक्सप्लोर अपने को करना है, राइट। तो ये तो देखो अभी मैंने आपको इनिशियली 10 टॉपिक दिए हैं। आई हैव गिवन यू 10 टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स मैंने आपको अभी दिए हैं। ऐसे ही टॉपिक्स आप भी बनाइए। मैं तो आपको बोलूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना, आत्मनिर्भर बनो। मैं आपको भाई साहब आत्मनिर्भर बना रहा हूं। आप आत्मनिर्भर, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी और एनी अदर टीचर। आत्मनिर्भर बनिए और अपने टॉपिक खुद बनाइए। मोबाइल होगा आपके हाथ में, ऐसे करके मोबाइल आप लेके चलते हो, इसमें 50 शब्द हैं जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती, आई गारंटी। उसके बारे में सोचिए। तो आज से आपका एक सपना होना चाहिए कि कोई भी चीज जो हमें दिख रही है, यहां से लेके ब्रह्मांड तक, पेड़ पे पक्षी बैठे हैं, घोंसला बना लिया है, घोंसलों की जो तीलियां होती, लकड़ियां होती है, किसी भी चीज की आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वो पक्षी जो उड़ नहीं पाते हैं, वो पक्षी जो उड़ते हैं, हवा में बहुत ऊपर तक उड़ना, नीचे नीचे उड़ना, बहुत सारी इंग्लिश है सीखने के लिए। मतलब आप जितना सोचो ना उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या, थकान नहीं आनी है, थकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो 2-4-10 दिन के बाद थक जाएंगे। यार कितना पढ़े, सर ने कह दिया कितना पढ़े, यार इतना नहीं पढ़ेंगे, बस भगवान एक नौकरी लगवा दो हमारी, और नौकरी लग गई तो भगवान बस अब ठीक है, चलेगा काम, है ना। और जो हाउस वाइफ्स हैं, जो वर्किंग मैन है, वो कहेंगे ठीक है यार जितना पढ़ रहे हैं उतना ठीक है, हमें नौकरी करनी तो नौकरी कर रहे हैं, अब इतने में हमारे जीवन गुजारना है। देखिए हमेशा
डू नॉट बी द सेम, बी बेटर। क्यों हमेशा एक जैसे ना बने रहो, कुछ तो अपने अंदर वैल्यू एडिशन करते रहना चाहिए। आप चाहें जितने लाख रुपए महीने का पैकेज आपका क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े लोगों को देख लीजिए, दे हैव हंगर ऑफ डिगिंग अनदर वेल फॉर देयर बिजनेस। एक और कुआं खोदते रहते हैं। तो कभी भी सेटिस्फाइड मत होइए। हाँ, ये भी नहीं कह रहे कि दुखी रहिए, बी हैप्पी बट बी नॉट बी सेटिस्फाइड। आप खुश तो हमेशा रहिए, जो दिया भगवान ने खुश रहिए, लेकिन सेटिस्फाइड मत होइए। अब देखिए, बीइंग हैप्पी और बीइंग सेटिस्फाइड में क्या अंतर है? पर्सनालिटी ग्रूमिंग का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग सेटिस्फाइड? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए, राइट, बीइंग हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना, और बीइंग सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट रहना। संतुष्ट, खुश होना और संतुष्ट होना। खुशी और संतुष्टि में क्या अंतर है? हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन में क्या अंतर है? देखिए, आप अगर 10,000 रुपए भी कमा रहे हो तो आपको खुश रहना चाहिए, आप 1,00,000 रुपया कमा रहे हो तो भी आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो गए, अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में भी और मैं संतुष्ट हो गया, यार बहुत हैं, तो मेरे जीवन के सभी सफलता के बढ़ने वाले मार्ग अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर किसी के पास 1,000 स्टूडेंट है, वो कहता है आप यार बहुत है, 1,000 स्टूडेंट बहुत है, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो वो भी उसकी भी सफलता ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। सो नेवर बी सेटिस्फाइड बट बी ऑलवेज हैप्पी। संतुष्ट कभी ना। संतुष्टि का मतलब होता है इसके बाद कुछ नहीं ना। ये कैसे हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि संतुष्ट हो जाएंगे? आप एसएससी सीजीएल में नौकरी लग गई, ऑफिसर बन गए, संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आप हमेशा अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो कहा गया स्काई इज द लिमिट। आसमान आपकी लिमिट है। अरे आसमान ना लिमिट कर पाओ तो सीलिंग तो अपने ऊपर जो देख रहे हो उसको तो कर लो। तो सबसे बड़ी बात है, नेवर बी सेटिस्फाइड बट बी ऑलवेज हैप्पी। खुश हमेशा रहो, जैसा भी है खुश रहो। इसके ऊपर भी भगवान एक लाइन देता हमको है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या गॉड देता लाइन है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका मतलब होता है उन चीजों को गिनो जो ईश्वर ने जिससे तुमको नवाजा है। उन चीजों के पीछे मत भागो जिससे तुम मरहूम हो। अगर आप उन चीजों के पीछे भागोगे जिससे तुम मरहूम हो तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। भगवान ने क्या क्या दिया है ये गिनो, ना कि वो गिनो जो तुम्हें नहीं दिया है। क्योंकि रफी साहब का गाना था ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम, गालो, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बिल्कुल सही है। देखिए कितने लोग अनफॉर्चुनेटली बेचारे कौन जेनेटिकली ब्लाइंड पैदा होते हैं, जन्मजात अंधे पैदा होते हैं, डेफ एंड डम्ब पैदा होते हैं, गूंगे बहरे पैदा होते हैं। भगवान ने तुमको पेयर ऑफ आइज तो दिया, भगवान ने तुमको दिखाया, दुनिया देख तो रहे हो यार, ये रंगीन दुनिया तो देख रहे हो अपनी आंखों से। सोचो उनकी जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो बेचारे देख नहीं सकते हैं, जो डेफ एंड डम्ब है, गूंगे बहरे हैं, बेचारे बोल सुन नहीं सकते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली क्रिपल्ड हैं, भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया, बेचारे पागल हैं। आप तो उनसे बेहतर हो ना। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए, ना कि वो जो नहीं है उसको देखिए। लेकिन एक चीज यहां पे और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखो, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। राइट? अगर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो ना तो आप अपने से बेहतर लोगों को देखो, सेटिस्फेक्शन का नाम बंद हो जाएगा। सेटिस्फाइड कभी नहीं होना। फिर मैं बता रहा हूं, अगर आप सेटिस्फाइड हो गए ना कि बस यार इतने से मेरा काम, मैं तो एक हाउस वाइफ हूं ना, कितना मेरे को कोई यूएन में जाके स्पीच थोड़ा ना देनी है, दिस इज एनफ फॉर मी, तो बेकार है। मेरे साथ आप मत जुड़िए, डू नॉट गेट कनेक्टेड विद मी, बिकॉज फिर मजा नहीं आएगा, अपने बीच में पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। टीचिंग जो होता है ना ये बाइलेटरल होता है। अगर मैं जो कर रहा हूं वो आप नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो मैं नहीं आपको वो दे पा रहा हूं, तो फिर मजा नहीं आएगा। बाइलेटरल है भाई साहब ये। तो इसमें सीखिए कि नेवर बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज बी हैप्पी। संतुष्ट कभी ना हो और खुश हमेशा रहो। देखिए मैं खुश हूं, आज कोचिंग क्लासेस 7 महीने से बंद है, ऑफलाइन क्लासेस हम लोग की, मैं खुश हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं।
समझ में आ रहा ना? तो संतुष्टि कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। दूसरी चीज, उन चीजों के पीछे मत भागिए कि ईश्वर ने हमको क्या क्या नहीं दिया। नेवर कर्स द गॉड, बिकॉज गॉड कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, राइट? तो आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। वी आर हियर, वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। और जब कल आपसे मिलेंगे तो कल हम इनमें से किसी एक का क्या पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कल आपको पता चलेगा यार इतने सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेरे को ही नहीं मालूम थे मेरे शरीर में है, इंग्लिश में। तब आप सरप्राइज होगे, तब आप कहोगे वाओ, MK sir has given us something new today। और मजा आ रहा है पढ़ करके, राइट? तो मिलते हैं कल आपसे ठीक 4 बजे, राइट? सो वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। वी शैल गेट यू कम बैक टू द सेम टाइम at 4 PM, right? Goodbye for now. Thank you.